पौंडाचार्य शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की, वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की, कलयुग का अवतारण हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री श्री गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में स्पेशल क्लासेस। स्पेशली हम लोग एक ही कथा कृष्ण और सुदामा का जो मिलन है और वे जो कई दिनों बाद में मिलते हैं उसी कथा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इस कथा को हमने जैसे 9 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ सुदामा, देन कंडीशंस ऑफ सुदामा एंड हिज वाइफ, they were in abject poverty in the grahastha life. Then we also heard the conversation between Sudama and his wife, right? Then there is contemplation by Sudama, which will start today. Then preparation of Sudama to visit his friend Lord Krishna, what all the preparations he takes place. Then commutation to Dwaraka, how he commutes his travel. And reception by Lord Krishna, recollection by Sudama of their Gurukul days, recollection by Sudama and Krishna of their Gurukul days. And then last but not the least, the reciprocation by Lord Krishna. So we had done the 3 parts actually. First one was Sudama's qualifications. We heard 6 qualifications of Sudama, out of which the important was Krishna Sasya Sakha. So if you are Krishna Sakha, then everything is there. The second thing was about yeah, that's okay. All the 6 qualities, out of which important was Krishna Sasya Sakha, because we don't have to recollect, but it's okay. Then second was the conditions of Sudama and Sudama's wife. So what did we hear last time? Just if you could recollect from that. उसमें सुदामा जी के जो वाइफ है वो अलग अलग रीजन देती हैं उधर जाने के लिए कि वो राजा हैं, आपके मित्र हैं, जगत के नाथ हैं। और वो ये ऐसा अपने लिए नहीं बोल रही थी, वो सुदामा जी के लिए बोल रही थी कि उनको उनकी गरीबी नहीं देखी जा रही। तो शी वाज गिविंग मेनी रीजन टू गो देयर। यस, तो उसमें उनका कन्वर्सेशन हुआ चल रहा था। The last year also sir told 2 lessons we have to learn from this year. One is one should not be judgmental. Yes. That was being when Sudama's wife was pestering Sudama to go and meet Krishna. So many of them would think that she's doing it for her benefit. Like, so the 2 lessons came out of it was being judgmental. We took the example of a child having mango, right? 4 mangoes, right? 3 mangoes and then 4th mango. And also we took the example of Jesus Christ. And second lesson was Sudama was fully dependent on Krishna. Okay. Well, come what may, I can live my life. But the problem was with Sushila, that is Sudama's wife, that, whatever be the case, I can live in poverty, I can starve to hunger, because we heard their condition. Like they were all, as if we took the example of like person who is, किसी ने क्या उस कंट्री का नाम भी लिया था, सोमालिया. So, abject poverty के चक्कर में उनका इतना ही हो गया था. So, come what may, I can be, but, I cannot see my husband and children suffering from. So that is the reason then she makes all possible. Okay, Krishna will take care, but the question is, at least you have to go there. Husband doesn't want to go. He says, go and meet your friends, she says. Then Sudama says, all my friends are paupers like me. Then she says, no, I'm not talking about your pauper friends. I'm talking about Shripati. She uses the word Shripati. Go to Dwarkadish.
he is the husband, he is husband of the goddess of fortune, लक्ष्मी, लक्ष्मीपति है वे। उनके पास जाओ तो वो कुछ करेंगे। तो बोलते रहे वो मेरे दोस्त थोड़ी है, बोले वो तो मेरे नाथ है। वो तो मेरे नाथ है, ही इज माई वर्शिपेबल लॉर्ड। So how can you think that I should go there and ask, okay, he's your Lord, then at least go there. But he will be happy because he's Go Brahmanitaya cha. So then he says, that's all okay, Go Brahmanitaya cha. But then right now I'm happy, whatever he is given. He says, no, if you go there, you will have darshan of Rishnis and the Yadukul people. सो तुमको मतलब हर तरह से उनको कोशिश करती है भाई, वो लोग भक्त है उनके, तो कोई ब्राह्मण मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, सब बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं अभी जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, उनके भक्त मिल जाएंगे और भक्त आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल देंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप जाओ, है ना। तो कुछ भी करो, यू हैव टू गो, राइट। सो then Krishna starts, like, of course, we took some examples of Tirupati and all those, but then, Krishna today starts thinking कि इतना जब पत्नी बोल रही है तो फिर हमें जाने में क्या अर्थ है। तो श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा, मैंने ग्रुप में डाला है। ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, बहुत सारे श्लोक हैं, एक एक बार ही करेंगे। स एवं भार्यया विप्रो, स एवं भार्यया विप्रो, बहुशा प्रार्थितो मुहुः, अयं हि परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम् इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं दधे, अप्यस्युपायनं कश्चित् किंचित् ग्रहे कल्याणि दीयताम्, स एवं भार्यया विप्रो, बहुश प्रार्थितो मुहुः, अयं हि परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम् इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं दधे, अप्यस्ति उपयनं किंचित् ग्रहे कल्याणि दीयताम्। कोई रिपीट करना चाहेगा? एक स एवं भार्यया विप्रो, स एवं भार्यया विप्रो, बहुशः प्रार्थितो मुहुः, बहुश प्रार्थितो मुहुः, अयं हि परमो लाभः, अयं हि परमो लाभः, उत्तम श्लोक दर्शनम्, उत्तम श्लोक दर्शनम् इति संचितन्य मनसा, इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं ददे, गमनाय मतिं दधे, उप्यस्योपायनं किंचित् अप्यस्योपायनं किंचित् गृहे कल्याणि दीयताम्। हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड, when his wife thus repeatedly implored him in various ways, the Brahmana thought to himself, to see Lord Krishna is indeed the greatest achievement of life. Thus he decided to go. But first, he told her, my good wife, if there is anything in the house I can bring as a gift, please give it to me. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सो भागवतम का ये चर्चा चल रही है और इस प्रसंग के ऊपर वी हैव कम टू द पॉइंट कॉन्टेम्पलेशन ऑफ सुदामा. So contemplating, Sudama is contemplating on what? On the form of the Lord. So upon being continuously requested by Sudama's wife and continuously being pestered to go and see to the Lord as a devotee, Sudama starts thinking, like, maybe, like, it is not worthwhile to go to Dwarika all the way and ask simply Krishna for some help as my wife is expecting. So this is where he starts contemplating. लेकिन जाके मेरे को खाली हमारे जीवन गुजर बसर करने के लिए मुझे जाके कृष्णा से मांगने की जरूरत नहीं है. So now he starts contemplating on the Lord. So his contemplation is based on, like even in today's scenario, probably I said this once before. How many of you remember? I don't know. You probably, if you know, John F. Kennedy's statement, which changed the famous presidential speech, which changed the entire, thinking of America. It actually shook the nations of America when he said that. And that is what is the logic. So if I repeat this, and probably people will understand what Sudama was thinking. So what John F. Kennedy in his opening speech, generally what happens in the inaugural speech, what they say, we'll do this, we'll do that, and all, and हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब इसी तरह के भाषण देते हैं ना. तो वहां पर उन्होंने क्या जैसे ओपन किया था, माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल दोस, he said one simple statement: ask not what the country can do for you. Ask what you can do for the country. Ask not what the country can do for you. कि हम क्या कर सकते, ये मत पूछो, ये मत सोचो. मतलब ये पूछो कि हम क्या कर सकते हैं नेशन के लिए. So when he made these lines, it actually shook the entire people of America. Like, we have to be a self-sufficient nation. Of course, America was, but then, it was coming out of the, it was developing country, and that is where the John F. Kennedy, that time, when he became the president. So when he made this, there was an entire paradigm shift in the thinking of the people over there. It's documented history. These wordings are, which makes a lot of difference. So it's a documented history where, it made a paradigm shift among the people's thinking. कि भाई ये मत सोचो कि दुनिया मतलब हम क्या करेंगे, हाँ आप ये सोचो कि हम क्या कर सकते हैं इस नेशन के लिए. तो सिमिलरली सुदामा ऑल्सो थॉट what I should think that Krishna will give me. What can I do for Krishna? What can I do for Krishna? So when we ask what Krishna can do for us, then we will call it as a mixed devotional service. है ना, थोड़ा अपना एक में मिश्रित कर्म जो बोलते हैं ना, मिश्रित कर्म योग जो बोलते हैं ना, कि भाई हमें सकाम कर्म की ओर से लिख जाना, what Krishna can do for us. When what I can do for Krishna, when you say,
that becomes Nishkam Karma, which is, the devotional service. So that is what Sudama was thinking, what I can do for Krishna. So that is what we should also advance in the stage from mixed devotional service to devotional service in our life. From Sakam Karma to Nishkam Karma. Like people start coming to that stage. पहले सकाम कर्म करते हैं, मेरे को कुछ फायदा होगा, और फिर धीरे धीरे हमारे रूटीन में आ जाता है, हम कुछ भी हो जाओ, वी स्टार्ट डूइंग दैट. तो जो भी कर्म हो, निष्काम कर्म, एंड दैट इज व्हाट. सो कर्म से भक्ति की ओर. ऑफ कोर्स, डूइंग कृष्णा सर्विस, we may ask our guru, we may ask our seniors how it has to be done. Okay. But the fact is, devotee does not want anything for his personal gain. Okay, we may ask, कभी ये कैसे करना चाहिए, आरती क्यों करना चाहिए, 7 बार क्यों घुमाना, 4 बार कैसे घुमाते हैं, कहाँ कैसे घुमाते हैं, all those things we can ask. But when you start doing it, is purely and purely, you are doing this not for your personal gain, it is for Krishna's service. So Sudama was feeling uncomfortable when Sushila was pestering him to go and ask for money and all those kind, go and ask help. Indirectly she was saying, but she did not spell out. But she was meaning that only. So then he said, ki when wife is creating so much pressure, what best I can do out of this? So Sudama thought, let me go to Dwarika. Okay, and that is where he starts contemplating. So contemplation. So I definitely agree that I should abide by the request of my wife going to Dwarika. Okay, but I will go for ayam hi paramo labho. ये जो वर्ड यूज हुआ था ना सेकंड में, ayam hi paramo labho. ब्राह्मणा विप्रो जो यूज कर रही थी कि ब्राह्मण की पत्नी उसको रिक्वेस्ट कर रही थी, तो अयम ही परमो लाभो, ये सोचने के लिए कि भाई ये मैं अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम. What a wonderful idea. अयम ही परमो लाभो. What a wonderful opportunity. Means लाभो में opportunity. What a wonderful opportunity I have got to have the darshan of Uttama Shloka. Uttama Shloka darshanam. Darshan of Uttama Shloka. Uttama Shloka Krishna का एक और नाम है ना. To be able to go to Dwarka, see him and behold on his beauty. है ना, दर्शन किस लिए करते हैं हम? To behold on his beauty. So this Uttama Shloka is very, very important word. How many of us utilize the opportunity in our life? Suppose you are going to any city. How many of you take this opportunity, go and visit that famous temple of that city? We do, right? We try to do, like, if you have gone to Ayodhya, we will try to definitely go and attend the Ram Mandir. If you have gone to Vrindavan, we'll definitely try to go and attend Krishna Balram Mandir, right? We will definitely. Yeah, I have gone to Bahrain for a single day. Morning and evening I came back. But still I could find time and visit Radha Bhairaneshwar. So, Radha Bhairaneshwar is the deity's name. So, at Bahrain. So, we do get chance and we do utilize. Of course, there are many people who go to all nonsensical places other than temple also. Then that is where the karma will be changed. So you don't have to worry. So for them, that is the Uttama Shloka because they want to go to Nandana garden. So, but for us, Uttama Shloka is the best place in that city. Okay, many of them. Okay. This is particularly temple I am asking because that is certainly related to Krishna. That's why. You go to the Agra, then you will definitely try to see Taj Mahal, right? If you have time. Definitely, right? You would definitely try to go and see Taj Mahal. So utilizing the opportunity when you are facing so many difficulties, when you have been requested continuously, okay, so why should I not go and utilize this opportunity to have the Uttama Shloka Darshanam? So Uttama Shloka, Srila Prabhupada, translated as glorification in the choicest poetry. ग्लोरिफिकेशन इन द चॉइसेस्ट पोएट्री है ना. हम कभी भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमारी कभी कभी ना कोई किसी को कुछ आता है, शांताकारम भुजग शयनम, कोई वैसे प्रार्थना करेगा, कोई है ना हे कृष्णा करुणा सिंधु करेगा, तो जो भी है अलग अलग. द चॉइसेस्ट
जो आपकी चॉइस है, राइट? जय राधा गोविंद, जय राधा दामोदर, जय राधा गोपीनाथ, जो आपको लगता है, फ्रॉम दैट यू विल चूज द चॉइसेस्ट ग्लोरिफिकेशन of Krishna and you will do, right? So choicest glorification. So Sudama thought, my wife is anyway pestering me, so let me grab this opportunity to see my worshipable Lord, because he had already said this, right? He is not my friend, he is my worshipable Lord. So let me have the darshan of my worshipable Lord. So he was contemplating that I am going to I'm not going to ask anything to Krishna for the help, but I will definitely go and have his darshan, है ना? So darshan is so it is indeed a wonderful principle, because there are so many who want to behold the form of Lord Krishna, है ना? In Kurukshetra there were three varieties of people, like, one who were inimical to Krishna, right? One who were inimical to Krishna, like Duryodhana, right? We don't have to take example, but yeah, he was inimical to Krishna. And then one who are not inimical, but who has not cultivated love for Krishna. हाँ, जानते हैं भाई कृष्णा है, अच्छा, मीन्स एक है, ग्वाला है, लाइक काफी सुपर नेचुरल पावर्स है उसके पास, ऐसा तो न, तो उसके लिए मीन्स लाइक उसके लिए प्रेम नहीं था, परंतु उसके लिए कुछ आस्था जरूर थी, कुछ उसके लिए बारे में जानते जरूर थे. सो दोज वेयर अप्रिशिएटिव ऑफ कृष्णा. तो हु आर दे? दी जनरल, जो नहीं, भीष्मा वाज द पर्सन हु लव्ड कृष्णा, पार्थ सारथी के रूप में. सो देवर ही वाज द थर्ड कैटेगरी, लाइक जनरल सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स न्यू, like, okay, Krishna is, I am not inimical to Krishna, but he is, I don't in level, mainly अच्छे हैं, बस खत्म. So the second category is all those soldiers, and third category was persons who actually loved him, and he was Bhishma, Drona, those kind of thing. And all these three categories, whether they were inimical, whether they loved Krishna, or whether they were neutral to Krishna, all were killed, right? All were killed under the instructions of Krishna. Arjuna and Pandavas together killed all the Kauravas and all the soldiers and all those. But the destination achieved by all these persons were all different. Srimad Bhagavatam says, third canto specifically described, wherein it is said that one who is inimical to Krishna and killed achieves the impersonal Brahman. Achieves the impersonal Brahman. Brahma Jyoti mein jaake mile. Those who were appreciative of Krishna as soldiers and all those, black eye, like so they appreciated Krishna's black beauty, lotus eyes, bimba lips, and glances. कई लोगों को ऐसा एक एक व्यक्ति का एक एक झलक पसंद आती है. तो ऐसे लोग, they were not inimical but just appreciative. बाबा उसकी चाल अच्छी है, उसकी आंखें अच्छी है, उसकी घुंघराले बाल अच्छे हैं. तो who were just appreciating Krishna, they achieved Vaikuntha planets. And those who loved Krishna achieved his supermost, the Goloka planet. So though all were killed by the instruction of Krishna, but they achieved their different destinations. So these were all general public, right? The public for Bhuloka. Like, when you say Bhishma, Drona, Duryodhana, or also the general soldiers and everybody. Okay, we'll not go into detail. Okay, some went to Swarga also, some went to, so Yam Vapi Smaran Bhavam, that is always there. But these three kinds of people, what I mean to say, will have three different destinations. So leave about general people, there are Devi Devatas also who always want to see this Krishna, who always want to see Krishna. So देवी देवताओं में सबसे महान देवता कौन है? महादेव. हाँ, क्योंकि देवों में देव महादेव है, सबसे बड़े देव वही है. सो शिव जी, महादेव जब वृंदावन आते हैं तो एक साधु का वेश धारण करके आते हैं, भगवती भिक्षाम देही कर. तो माता यशोदा जो है सो भिक्षा लेके बाहर जाती है और बोलती है कि चावल वावल देके देना चाहती है. तो लेते हैं शिव जी और बोलते, माते हमने तुम्हारे पुत्र के बारे में बहुत सुना है, हमको उसका दर्शन कराओ.
है ना। तो माता बोलती है अच्छा आप तो साधु हो, नहीं बोले हम आपके पुत्र का दर्शन किसी भी हिसाब से करना चाहते हैं, तो ठीक है अंदर आना पड़ेगा आपको। तो बोले हम आएंगे। साधु इंजीनियर घर में जल्दी आते नहीं है, आते हैं बट लाइक रहे तो भी ज्यादा रहते नहीं है। तो बस वो जनरली जब भिक्षा लेने आते हैं तो द्वार पे ही भिक्षा मांगते हैं, चले जाते हैं, बस 2-3 सेकंड के लिए भिक्षा मांगते हैं, निकल जाते हैं। साधु अंदर आते हैं और कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण ही बोलते हैं अच्छा तू मेरे दर्शन के लिए आ गया, तो ठीक है। तो फिर वापस उनमें आपस में थोड़ा मेंटली माइंड टू माइंड वार्तालाप होता है। सो उत्तम श्लोक दर्शनम। सो देवताओं में महादेव भी कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। चांस, हाँ चांस से मारना जिसको बोलते हैं ना, कि भी अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं, वैसा टाइप कई देवी देवता। सो देवी देवता तो फिर भी उच्च कैटेगरी के व्यक्ति है, मीन्स लाइक सुपर इंसान के लेवल पर आते हैं। पर जो हम बोलते हैं ना कि परंतु कृष्ण के स्व अंश श्री महाविष्णु, श्री महाविष्णु कौन है, जो ऊपर ये जो स्पिरिचुअल लोक के नीचे जो सोए हुए हैं, जस्ट वो पानी के अंदर अपने नीचे वाला ब्लैक है, उसके अंदर सोए हुए विष्णु नहीं, ऊपर वाले, वो ऊपर वाले श्री महाविष्णु है। ये नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु है, और हम सब प्राणियों के बीच में एक क्षीरोदक्षाई विष्णु है। हाँ वो गर्भोदक्षाई विष्णु, वो कारणोदक्षाई विष्णु जिसको श्री महाविष्णु बोला जाता है। तो श्री महाविष्णु जो खुद के means बलराम जी से संकर्षण वगैरह प्रद्युम्न, फिर उसके बाद में अनिरुद्ध, और उसके बाद में श्री महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। तो श्री महाविष्णु जो कि उनके पहले अंश है, मीन्स लाइक जो क्रिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, लाइक मेंटेनर, क्रिएट मीन्स इनिशियल क्रिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वे। क्योंकि जैसे ही वे सांस छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड पैदा होते हैं, सांस वापस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड सिमट जाते हैं। तो वे श्री माँ विष्णु एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र हुआ, बड़ी खुशी से मनाने वाले थे कि पुत्र हुआ है, खुशी मनाने वाले थे, उतने में वो पुत्र गायब हो गया। बड़ा दुखी हुआ, अरे ये क्या, पूरा ढूंढ लिया कहीं मिला नहीं। फिर वापस अगले दूसरी बार दूसरा पुत्र हुआ, वैसे ही बस हुआ और कुछ सेकंड बाद में गायब हो गया। ऐसे 3-4 बार हुआ। तो परेशान हो गया वो, ये क्या हो रहा है कि भाई ऐसा मेरे पुत्र हो रहा है, मैं देख रहा हूं, खिलाने वाला होता हूं कि वो गायब हो जाता है। तो जाता है किसके पास, राजा के पास, द्वारकाधीश उग्रसेन महाराज है ना। तो कृष्ण द्वारकाधीश है परंतु उग्रसेन राजा थे ना। तो नाना को उन्होंने, तो उग्रसेन जी के पास जाता है और फिर गुहार लगाता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है राज्य में, पता नहीं मेरा ऐसा हुआ, 4-5 बच्चे हुए मेरे ऐसे गायब हो गए। तो अर्जुन उस समय वहीं आया होता है दरबार में। तो बोलता है क्या बात कर रहे हो, किसकी हिमाकत हो सकती है इस राज्य में तुम्हारा बच्चा चोरी करने की। चलो इस बार बोले मैं रहूंगा, बोले आई विल बी एज ए गार्ड, देखता हूं कौन आता है और चुरा के ले आता है। तो अर्जुन, समय आता है अर्जुन खड़ा रहता है गार्ड बनकर कि अभी डिलीवरी डिलीवरी होती है, देखते हैं बच्चा, देखते हैं, विद इन उसके सामने, आंखों के सामने ओझल होके गायब होता है। अर्जुन परेशान, तो बोलता है कि ठीक है मैं ढूंढ के लाऊंगा, बोले आपका ये पुत्र किसी भी हिसाब से मैं ढूंढ के लाऊंगा, यदि मैं ढूंढ के नहीं लाया तो मैं अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगा। बोलते तो मैं ढूंढ के लाऊंगा, क्या ढूंढ के लाओगे, मेरे 5 नहीं आए। तो बोलते नहीं आप चिंता मत करो, मैं अर्जुन हूं, मैं प्रण लेता हूं, मैं ढूंढ के लाऊंगा, नहीं लाऊंगा तो मैं अग्नि में अपनी आहुति दे दूंगा। एज यूजुअल जैसे जयद्रथ के समय किया था, है ना, ये भी युद्ध के बाद का समय था। तो जय, तो अर्जुन को थोड़ा उत्तेजना रहती है ना, क्षत्रिय उत्तेजित रहते हैं कभी भी कुछ चीज के लिए। तो गया, प्लान बना के यमराज जी से मिलने गया। यमराज जी को पूछा भाई ये ऐसे ऐसे लड़के कोई आप गायब कर लिए, तो बोले ना उस ब्राह्मण के कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं आया है। तो वो वापस आता है, फिर देखता है, परेशान हो जाता है कि हु कुड हैव डन दिस। तो फिर कृष्ण मुस्कुराते रहता है कि भाई मैं क्या बताऊं इसको, लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। तो फिर अर्जुन बोलता है ये हो नहीं सकता, मैं ढूंढ नहीं पाया हूं कृष्ण, अब मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, आई हैव टू गिव अप माई लाइफ। तो बोलता है पहले बात तो तू ऐसा करता क्यों है, बार बार उत्तेजना में आके ऐसे करता क्यों है, व्हाई डू हैव टू टेक वॉज विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। ओके, तो अब बोले मेरी आइडिया, मेरी बात सुन, 2 मिनट रुक, बोले तुझे अभी मरने की जरूरत नहीं है, अग्नि में दाह करने की जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ, बोले
तो फिर उनको लेके आते हैं इस भूलोक से। कृष्ण अपने साथ हाथ पकड़ के ऊपर क्रॉस करते हुए सारे 6 लोग क्रॉस करते हैं, पूरे ब्रह्मलोक तक क्रॉस करके, फिर पूरे 5 आवरण जो ब्रह्मांड के वो क्रॉस करके निकलते हैं और विरिजा नदी में पहुंचते हैं। जो ये विरिजा नदी लिखा हुआ होता है नहीं, कारणोदक्षाई सागर के अंदर वो विरिजा नदी एक आती है। तो विरिजा नदी के किनारे जाते हैं जहां पर श्री महाविष्णु अपनी ध्यान मुद्रा में, मीन्स लाइक शयन मुद्रा में शेषनाग की शैया पर सोए हुए होते हैं, और वहां पर उसके ये 5-7 बच्चे जो भी है वहां सामने बैठे रहते हैं। तो अर्जुन को बताते हैं, देख ये है बोले वो। तो देन सो हाँ, तो देन लाइक तब कृष्ण उसको पूछते हैं कि भाई महाविष्णु को, भाई तुझे ही इनको लाने की क्या जरूरत थी? तो बोलते क्यों ना लाऊं, बोले आपने जब से मुझे क्रिएट किया है, मैं जब से आपका अंश बना हूं, लेकिन ना जब से मैं आपका अंश से बना हूं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैं जब से आपने मुझे एक्सपैंड किया है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, ये करते जा रहा हूं। अनेकों डिस्ट्रक्शन क्रिएशन मैंने किए हैं, और ये सब मैंने विदाउट कंसल्टेंसी फी की है। कोई ये सारा कार्य आपके कहने पे विदाउट कंसल्टेंसी किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे कंसल्टेंसी फी लेनी होगी। कौन सी कंसल्टेंसी फी? बोले आपका दर्शन करना होगा। तो मैं अपना कार्य यहां से छोड़ के जा नहीं सकता था, तो मैं ऐसा कार्य क्यों नहीं युति सोचा कि भी जिसमें आपको मजबूरन मेरे पास आना पड़े, और मैं एटलीस्ट आपका दर्शन साक्षात कर सकूं। और क्या कर वो उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक का खूब तारीफ के कसीदे बनते हैं। तो ये उनके नो पब्लिक भी क्या, देवी देवता क्या, उनके स्वांश क्या, वे भी लालायित होते हैं इस उत्तम श्लोक दर्शन के लिए, उत्तम श्लोक के लिए, दर्शन के लिए। गोपियों ने ब्रह्मा जी को ही श्राप दे डाला कि हमारे आंखों के सामने पलके क्यों बनाई, ये पलके झपकती रहती है और उतनी देर हमारा कृष्ण का दर्शन हमसे हो नहीं पाता है ना। आजकल बच्चे भी, माता पिता पढ़ाई करके सो जाओ बोलते हैं तो नहीं, टैब लेके बैठ जाते हैं कि नहीं, टैब या मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, पलक झपकाना छोड़ना ही नहीं चाहते, नहीं। पलक बंद करना ही नहीं चाहते, बेचारे पलकों को कोसते रहते हैं, पलक बंद हो रही है, नींद आ रही है, बट मुझे कार्टून देखना है ना। तो गोपियों ने तो कर्ज कर दिया था ब्रह्मा जी को, भाई तो पलके क्यों बनाए? तो उत्तम श्लोक के दर्शन के लिए बाधा होती है। तो इनके उत्तम श्लोक, अभी इन लोगों की पढ़ाई अभी ये रहता है। तो कपिल देव तीसरे स्कंद में, जो हम लोग अभी 10वें स्कंद में भागवतम के, तो तीसरे स्कंद में रीजंस देते हैं हाउ यू शुड कॉन्टेम्पलेट ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। एंड दैट इज व्हाट, लाइक व्हेन यू इमेजिन समथिंग, यू कॉन्टेम्पलेट, लाइक वो ये कलर का गमछा पहना होगा, ये कलर का ये पहना होगा, ये सो यू कॉन्टेम्पलेट राइट फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, top to bottom you contemplate, but the process is from bottom to top. So one should meditate on the Lord from the bottom till the top, from the toenails till the head. That is the process which Kapil Dev defines. So, and that's why, looking at the toenails, what will happen? Starting from toenails, so looking at toenails, what will happen? So Kapil Dev gives the reason that when toenails of Krishna, when viewed alone by our eyes, the effulgence of the toenails cast on the eyes, on our eyes, casts away the gloom, है ना। ग्लूम बोल तो क्या होता है, बहुत थिक क्लाउड जो बोलते हैं ना, ग्लूम उसी को ग्लूमी वेदर भी बोलते हैं ना हम लोग। बहुत ही काला काला जब क्लाउड होता है तो उसको खुल नहीं रहा है क्या, खुल नहीं रहा है माता जी? It is not opening. You hope that. ओके, सो तो so thick gloom created in the heart gets cleared away just by the having the darshan of the toenails. So that gloom which is created by the material energy in the prakriti, that same in the form of the dirt is accumulated in our heart, that gets cleared away just by watching, meditating on the toenails of the Lord. Then comes
his lotus feet. After the toenails, it is the lotus feet, right? So lotus feet alone are like thunderbolts. You know thunderbolt? इंद्र का वज्र जिसको बोलते हैं ना, thunderbolts. So when thunderbolt falls on anybody, on any mountain, that mountain is turned to ashes. वज्र प्रहार बोलते हैं ना, वज्र प्रहार हो गया. वज्र प्रहार जब होता है तो माउंटेन्स भी टूट के गिर जाते हैं. यूं इंद्र करता है कई बार. सो कृष्ण के चरण उस वज्र के समान है, उस थंडरबोल्ट के समान है, वेयर द माउंटेन ऑफ सिंस in our heart, mountain of wrong desires, the mountains of illegitimate thoughts, all this gets crushed just on meditating the lotus feet of the Lord. That's why you see in ISKCON, the deities are always open, you know, the legs are always open for your darshan. Like if you also see my Gaur Nitai, when you see always, the leg is always open. Always, you know, so that, you know, it starts from at least these two things, the toenails and the legs, darshan if you have, slowly that darshan itself would cleanse your heart. So, lo. So, similarly, each and every part of the body has been described, you know, so, you know, of all things. We'll not go in detail because, you know, we just have to see, like, you know, from toes to the head. So we will come to, you know, eyebrows of the Lord. The eyebrows of the Lord has special benediction, you know, for the sages, you know, that, you know, it clears the arrows of Cupid. जो हमारे, जो आंखों में जो लस्ट भरा होता है, that Cupid lust जो भरा होता है, that gets cleared just by having the darshan of the eyebrows of Krishna. One's heart gets purified. So, इस प्रकार, like, you know, face, Krishna smile. So, tears of lamentation gets dried up by meditating the form of the Lord. Tears of lamentation, जो हमें दुख होता है, कई चीजों का जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे एक क्षण में सूख जाते हैं. तो tears, lamentations will just go away, but just by having the darshan of his smile. इसलिए जब किसी का स्माइलिंग फेस देखते हैं तो हम अपना सारा दुख गम भूल जाते हैं. तो कृष्णा का तो फेस ऑलवेज स्माइलिंग होता है, ऑलवेज स्माइलिंग. यू विल सी ऑलवेज कृष्णा इज नेवर in angry mood. So Sudama was contemplating in his mind that I may not get money from Krishna, and which I don't care. All I want is I am he paramo labho uttama shloka darshanam. That's the greatest achievement I will achieve. ना जो देवी देवता, जो स्वांश, जो सबको ही अचीव करना चाह रहे हैं, वो हमको प्राप्त होगा. तो श्रील प्रभुपाद once asked, you know, like उनके एक कोई रिपोर्टर आया था, उनको पूछा, he was asked, did you see God? Then Srila Prabhupada says no. He says no, not possible. You are propagating so much, people are all getting attracted to you. I'm sure you must have seen God. So Srila Prabhupada says no, I have not seen God. And repeatedly when he pesters, he said, I have seen God, but I don't remember because I was just 4. He wants to say physically see God. I am seeing God in physical form here in the DT, which they will not understand. So he says, I am seeing God everywhere. If you are asking me seeing God physically, yes, I am seeing him, but I have not seen him. So, I have seen when I was small. I don't remember that form, but all what I am seeing is the present DT form, and we are doing service to that DT, which is equivalent to that of Uttama Shloka Darshanam, which is equivalent to that of the Uttama Shloka Darshanam. So, for us, we have to understand when Srila Prabhupada says this Uttama Shloka Darshanam means that's mission of Krishna for us, the mission of Krishna. So we have to have his darshan, means we have to do his seva. सेवा कोई खाली क्या कई चीज की होती है ना.
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, हम जो भी यहाँ कर रहे हैं उनकी सेवा है। चाहे मैं बोल रहा हूँ उनकी सेवा है, चाहे आप कीर्तन कर रहे हो वो उनकी सेवा है, आप प्रसाद बना रहे हो वो उनकी सेवा है, आप आरती कर रहे हो वो उनकी सेवा है, सब उन्हीं की सेवा है। हाँ, नवता प्रवृत्ति, हर प्रकार की भक्ति उनकी सेवा ही है। सो यू शुड सी एंड परफॉर्म आरती। तो जब भी आप देखते हो अब लॉर्ड के फॉर्म को, तो टो, चरण, आंखें, आईब्रोज और स्माइल, ये जरूर देखा करो। क्योंकि यही मौका होता है, मैं आप लोगों को इसीलिए आरती का मौका देता हूँ। हर बार अपने को आरती नहीं मिलती है, मंदिर जाओ तो हर बार आरती नहीं मिलती है, जाके दर्शन ही करना होता है। पर हम जब आरती कर रहे होते हैं तो ये दर्शन के साथ साथ हम उनकी सेवा कर रहे हैं आरती करने की। सो उत्तम श्लोक दर्शनम, आप लोग भी आए हो उत्तम श्लोक दर्शनम, ओके, कथा सुनना है, वो भी उत्तम श्लोक दर्शनम की कथा है। So we serve more and we qualify ourselves more. This is the principle. The more we serve, the more we qualify, the more we purify. It is not that कुछ थोड़े दिन अब थोड़ा करने का बस खत्म, ऐसा नहीं। एवरी टाइम, कॉन्स्टेंटली, सतत, सततम कीर्तयन्तम, आगे बताएंगे भगवान। सतत, ऑलवेज। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो मीन्स लाइक शीला प्रभुपाद के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उसके बाद में गौर किशोर दास बाबा जी, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो जो बीच में जो मीन्स लाइक फोर्थ लेवल, वो बोलते हैं कि वृंदावन इज जस्ट फॉर शैलो थिंकर्स, फॉर गौड़ीय वैष्णवास कुरुक्षेत्र इज इंपॉर्टेंट। Don't go surprised. He said once. So people were taken aback. What? We are all serving Vrindavan, and you say Vrindavan is for shallow thinkers? So he says, for us, Seva is more important. So Kurukshetra is the place where Radharani had gone to pull Krishna to bring back to Vrindavan mood. Krishna was not coming back. So they had to put him into the Ratha and pull it back to Vrindavan. Of course, Krishna said it's not possible now, I'll come later. So he goes in the end, in that same form. When they were pulling the cart only. तो ये जो रथ यात्रा की है, ये वन ऑफ द शुरुआत के रीजन वो भी है कि कुरुक्षेत्र में जब एक ग्रहण लगा था तो सारे लोग ग्रहण में उस एक वहां पर एक पवित्र सरोवर है, उस सरोवर में स्नान करने जाते हैं। तो द्वारिका से लोग चले थे और इवन वृंदावन से भी लोग पहुंचे थे, उनको पता था कि कृष्ण भी वहां पहुंच रहे हैं, तो सारे वृंदावनवासी, राधा रानी, गोपियां सब पहुंच गई कि भाई कुंड में स्नान करना है, पवित्र कुंड में स्नान करना है ग्रहण के पश्चात, और इसी बहाने हमारे उत्तम श्लोक के दर्शन भी हो जाएंगे। और उत्तर दर्शन ही नहीं किया, उन्होंने पकड़ के उनको वृंदावन लाना चाहा है ना। तो ये जो रथ यात्रा हम जो सेलिब्रेट करते हैं, उसी का मूड है। तो ये सेवा का भाव समझाने के लिए मैंने भक्ति विनोद ठाकुर का ये डायलॉग बोला है। सो अदर वे डोंट थिंक दैट वृंदावन इज फॉर नॉट फॉर गौड़ीय वैष्णव, इट्स जस्ट सिंबॉलिक, बट द प्रिंसिपल इज दैट सेवा इज इंपॉर्टेंट। भक्ति विनोद ठाकुर वाज जस्ट saying that. So somebody were sometime misplace. Oh, Bhakti Vinod Thakur, the Kshetra is important. We don't have to go to Vrindavan. No. Vrindavan is equally important, but the mood is more important. Our mood should be more seva rather than in Vrindavan you will find different moods. लल्ला को लेके घूमने वाले रहते हैं, मैं ही सुलाऊंगी, मैं ही करूंगी, वैसे वाले भी मूड रहते हैं, और अलग अलग मैं ही गोपी हूं, गोपी बन के घूमते रहेगी, नाचते रहेगी, अलग अलग भाव वाले मिलते हैं। तो हमारा भाव है सेवा, ये बता रहे थे। सो सेवा इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। सिर्फ लॉर्ड नहीं, उनके डिवोटीज को भी, और भगवान चाहते हैं मेरे डिवोटीज को तुम पहले सर्व करो। सो फॉर सुदामा इट वाज ऑल सेट। ही सेड उत्तम श्लोक दर्शनम I have to go and do. So I'll go to Dwarka, have the darshanam of the Lord, and behold the beauty of the Lord, whom I'll be seeing after a long time, and that is how this contemplation. So we should also always contemplate in our life, contemplate so that, our heart, which has accumulated so much of gloom, dust, dirt, by having darshanam during aarti, during other time also, when you come, when you closely see the Lord, what did the Lord wear, how he is smiling. So when you see that, automatically your gloom, your heart starts getting soft, है ना, नवनीत बोलते हैं ना, ये बटर
बटर की तरह सॉफ्ट होने लगता है. कृष्णा लाइक्स बटर. नवनीत चोर. प्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगना नाम यदुकूल चौरम. सो ये चौराष्टकम हम लोग करेंगे जब अधिक मास आएगा अगले साल. कृष्णा ने चाहा तो जरूर 1 month. नवनीत मीन्स बटर. हाँ. सो वाइट बटर. सो नवनीत चोर मीन्स लाइक उसको जो बटर चोर, बटर थीफ जिसको बोलते हैं, तो उसको नवनीत. जो चरनी में जो लिखा हाँ बस वही वही. हाँ क्रीम जो बोलते हैं ना, क्रीम. फ्रेश क्रीम रादर. हाँ फ्रेश क्रीम उसको नवनीत बोलते हैं. सो अगर वो चाहा कृष्ण ने तो हम जरूर वो रजे प्रसीदम एक चौराष्टकम है 8 श्लोकों का. डेली गाया जाता है सुबह शाम. जैसे हम दामोदर में दामोदर अष्टकम गाते हैं वैसे अ, अधिक मास में इस चौराष्टकम को गाया जाता है. सो दिस वे उत्तम श्लोक दर्शनम के लिए रेडी हो गया. रेडी होते ही उसने क्या सोचा, कुछ प्लान तो करना पड़ेगा, है ना. So that is where after contemplation, Sudama starts thinking and starts preparing for his travel. So for us, you all know when we have to travel, क्या क्या करना होता है. We have to have our passport, we have to have our visa, we have to have our tickets, है ना. We have to have our validity of the passports, like our Devashish Prabhu forgot the validity of our passport, है ना. ट्रैवल एयरपोर्ट पहुंच के पता चला ना. पासपोर्ट आ गए. नहीं ठीक है, आ गया. वो टिकट बुक करो. So this is what it is like. जन्माष्टमी के बाद जाएगा. चलो चलो ठीक है, उसको एक वाकया याद आ गया मेरे को. व्हाट ऑल वी हैव टू डू वी नो, राइट. सो हम अगर वो ध्यान नहीं करेंगे तो हमको एयरपोर्ट से रिटर्न होना पड़ेगा. सो तो ये इसके अलावा हमको क्या, होटल बुक करो या फिर ना जहाँ जाना है, या फिर साथ में स्पेसिफिकली मोबाइल लो, मोबाइल के चार्जर लो, लैपटॉप के चार्जर लो, शेविंग के चार्जर लो. आजकल तो टूथब्रश के भी चार्जर आ गए. हाँ? इतने सारे चार्जर हो गए, इतने सारे चार्जर लो. ऑल इन वन चार्जर भी काम नहीं आता है. मेरे आईफोन में मैं लगा देता हूँ कुछ जनरल वाला तो बोलता है नॉट सपोर्टिव. इसको ओरिजिनल ही चाहिए. सो सो ऑलवेज हमको ओरिजिनल कैरी करना पड़ जाता है ना. तो काफी कुछ. तो सुदामा ने अपनी वाइफ को बोला कि भाई मैं उत्तम श्लोक के दर्शन के लिए जा रहा हूं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ है घर में, है ना. वो आज के श्लोक में हमने जो पढ़ा था उस श्लोक में वही प्रश्न था. तो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन, वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग बट आफ्टर वी कंप्लीट this one chapter which we stopped up because of Rath Yatra, and then we did not continue because of summer evening what we were reading. We will continue on Nectar of Devotion. It's very important book. So, Nectar of Devotion, Rupa Goswami says, when you go to the temple to have the darshanam of the Lord, Uttama Shloka Darshanam, take something. That is part of our sadhana bhakti. When we take something, it is a part of our sadhana bhakti. So, in general, what happens? We have budgets for every month, right? This budget for our eating purpose, this budget for this purpose, this budget for purpose, and then finally once you say, oh Krishna, this budget is over today, this month, maybe next month I'll see. But Krishna has never demanded your budgets. What did he say? Patram pushpam phalam toyam. Okay. Just 4 things, very simple. Even not that. Yad karoshi yad asnasi, yad juhosi dadasi. Yad means like, leave it, whatever you want to, whatever you want to have, whatever you want to leave, whatever you want to, deselect yourself, or if you want to take, मुझे ये नहीं खाना है, whatever, okay, आपने प्रण लेना है तो okay, जो भी आप करना चाहो, तत्कुरुष्व मदर्पण, सिर्फ मुझे आप वो अर्पण कर दो. So you're taking that I'll leave this for you, Krishna. So you're taking that with you. So in this way, like, whatever austerities you perform, like what it says, that shloka, yat karo chetna, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you give away, or whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. 9.28, 28 है प्रभु, 27 कुछ है, 27, हाँ वही 26 और 27 दोनों. Yes. So well, if you can't bring all those, okay, it's not necessary, because if everybody starts bringing, then it will have to be consumed with everybody. So you have to understand this important part also. So if you can't bring those,
to the temple, like, I'm not telling this is a temple, but in general, when you go to the, take at least yourself. Take at least yourself. Atmavan. हम लोगों ने पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही जब when we are reading on this 2 point, Atmavan बनो है ना, Krishna, be possessor of the self. How can I become the possessor of myself? We were thinking. So we have to come to that quality, like, that are you in your senses when we say, yeah, like, I understand that. So at least Atmavan bolo, carry your Atma to the Krishna. There Atma will see Paramatma and become happy. So Atma cannot go because it has to need a Sharir. And as a Sharir, you take Atma with you and become Atmavan. Possess the Atma and become the Atmavan. So at least carry this Atma with you to see the darshan of the Paramatma. इसीलिए जब भगवान के पास जाते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है खाली हाथ भी जा सकते हो. कुछ लेके जाने का अर्थात है अपनी आत्मा को भी ले जा सकते हो. लोग हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ काटा था, अपना गर्दन ले नहीं, वो एक असुर ने अपने अपने हाथ काटे, यहाँ से जंगा काटी, यहाँ से एक असुर ने काटा था ना, कौन सा वो नाम याद नहीं आ रहा है. हाँ नहीं, उसने प्रसन्न करने के नहीं, ये कुरुक्षेत्र के अंदर ही ना, कुरुक्षेत्र के अंदर ही कुरु जो अपना क्या बोलते हैं पहला राजा था, उसने धर्म की खेती करने के लिए भगवान ने प्रश्न पूछा तो अपना ये शरीर काट के दिया, हाथ काट, दोनों पैर काट के दिया, हाथ काट के दिए, और गर्दन भी काट के देने वाला था. तो ना वैसा तो कुछ लोग करते भी है, राजा लोग करते भी है. तो वो सब करने के लिए बिकम आत्मवान. दैट्स इट. ऑफर योर हार्ट टू कृष्णा, ऑफर योर वर्ड्स टू कृष्णा, ऑफर योर माइंड टू कृष्णा, एंड विद दिस मन बुद्धि अहंकार ये जो अगर ये ऑफर कर देते हैं कृष्ण को, तो आप कभी भी यू आर नॉट गोइंग एम्प्टी हैंडेड टू कृष्ण. You offer your mind to Krishna, that I listen to Krishna's katha. You offer your ears to Krishna. So you are never going empty-handed. Okay? So you get your clear? So sometimes when we say कुछ लेके जाना चाहिए, वो एक ही बात आती है. एक ही बात नहीं सुनना चाहिए. जो सेवा कर सकते हैं करें, बेचारे जिनके फैमिलीज नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएंगे ना, कोई बात नहीं. तो बट खुद को लेके आना चाहिए, लेकिन आना जरूर चाहिए. उत्तम श्लोक का दर्शन का मौका हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. कुछ घर में भी है, बट देन कुछ कथा सुन रही हो तो कथा का उत्तम श्लोक के बारे में वो सुनना चाहिए. सो ब्रिंग योरसेल्फ एंड बिकम आत्मवान. सो सुदामा व्हेन रिक्वेस्टेड वाइफ टू चेक एनीथिंग, शी चेक्ड, शी हैड नथिंग इन द होम. एब्जेक्ट पॉवर्टी, नथिंग इन द होम, कुछ भी नहीं था. पानी भर के ले जाए तो बोतलों में ऐसा भी नहीं रहता ना पहले के में, ये आजकल बोतल आती है एक बोतल लेके चले, वैसा भी नहीं था ना सिचुएशन, वैदिक काल है. तो सुदामा की वाइफ बहुत कुछ ढूंढी, कुछ है नहीं, तो फिर तुरंत उसने सोचा. हम सेकंड श्लोक पढ़ते हैं, मोबाइल में ले लीजिए. याचित्वा चतुरो मुष्टेन, चतुरो मुष्टेन विप्रान पृथुकतांडुलान चैव खंडेन तान बध्वा, चैलखंडेन तान बध्वा भर्त्रे प्रादात् उपायनम याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुकतांडुलान चैलखंडेन तान बध्वा भर्त्रे पादात् उपायनम. Sudama's wife begged 4 handfuls of flat rice from neighboring brahmanas, tied up the rice in a torn piece of cloth and gave it to her husband as a present for Lord Krishna. याचित्वा मीनिंग्स बेग्ड. याचित्वा याचना करना, दैट्स व्हाट बेग्ड. नेबरहुड ब्राह्मणास के पास जाकर क्या बेग किया? चतुर, हाँ, फ्लैट राइस. एंड बेग कर कितना मिला उसको? चतुरा मुष्टिन, 4 handfuls ऑफ, हाँ 4 handfuls. व्हाट 4 handfuls? हाँ, पृथुक तांडुलान. पृथुका 4 types of flat rice.
4 टाइप्स, पृथक, अलग अलग प्रकार के तांडुलान। किसी का थोड़ा रेड था, किसी का पुराना था तो थोड़ा काला टाइप था, किसी का व्हाइट था। हर एक के पास एक जैसा नहीं रहता, राइट? हर एक के घर में चिड़ुआ अलग अलग टाइप का, चावल अलग टाइप का मिल सकता है ना, सबके पास एक जैसा नहीं मिलता है, अनलेस सब लोग लुल्लू से लाओ तो एक ही जैसे मिलेगा, एक क्वालिटी। बट इन जनरल जैसे हम दुकानों से लाते हैं तो 4 प्रकार के, 4 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ चिप्ड राइस, पृथक। एंड दिस 4 households represented what? The Varnashram Dharma. Of course, she had been to Brahmanas and all this only, but 4 different houses representing Varnas: Brahman, Vaishya, Kshatriya, and Shudra, representing all these 4 Varnas. That is why they got 4. So now she got this 4 rice. She could not cook this, right? You know, if she cooks and give it, may go bad till the time he reaches, and it requires other masala also. They didn't have anything. So what did she do? She tied those 4 pieces of 4 handful of rice in a piece of torn cloth. दस्ती भी नहीं थी, पटी हुई कपड़े की पोटली है ना, फटे हुए कपड़े बहुत रहते हैं, पहले के जमाने में बहुत रखते थे, हमारे तो याद है, आज भी, आज नहीं रखते हैं, बट चिंदियां रखते थे घर में, इफ यू ऑल रिमेम्बर, राइट? पुराने कपड़ों के ऐसे, या फिर कोई कपड़ों के सैंपल्स पड़े हो तो ऐसा है ना, ऐसा रखते हैं ताकि कभी कुछ सीने में काम आएगा। हम तो देखे हुए बचपन में, एक बड़ा बंड पोटली रहता था, कुछ बचा हुआ कपड़ा, कुछ ये वैसा, उसमें बांध देते थे, पोटली, गठरी गठड़ी, हाँ, उसमें बांध देते थे। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? चिंदियां लेकर आओ, चिंदी लेकर आओ, तो वो लेके हम लोग बांधते थे। यार हर एक के घर में मिलेगा आपको, राजस्थानी में तो स्पेशली मिलेगा, इन जनरल भी सबके घर में मिलेगा। तो आज रखते नहीं है क्योंकि इसकी कोई कदर नहीं है आज तो उस उसमें से एक कपड़े में लेके बांध के उनको गिफ्ट के तौर पे दिया। चैल खंडेना बांध तत्व, चैल बोलते टूटा हुआ, टूटा फूटा कपड़ा, मीन्स फटा पुराना कपड़ा, बांध तान बदवा, उसको बांध दिया फटे पुराने कपड़े में, एंड गिव इट टू सुदामा एज कृष्णा's गिफ्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल मीनिंग हियर ऑल्सो वन हैज टू टेक इन लाइफ। हम लोग कई बार इसमें मटेरियल लेवल में एक दूसरे की ऐसा देखा देखी करते हैं, बट देन यू नो सी, द गिफ्ट इज नॉट अ थिंग, रादर इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। Gift is not a thing, rather it is an expression of love. So it does not matter what you give. What matters is, how you give. yeah, what is the affection what is the affection through which you give. And today's birthday, you know, birthday parties, you know, and all those, you know, like कितना बड़ा गिफ्ट लेके जाऊं, कितना, you know, like ऐसा, खैर ये नहीं बोलता हूं कि मत कीजिए, बट द क्वेश्चन कम्स आउट इज, क्योंकि आजकल के बच्चों का भी एक्सपेक्टेशन हो जाता है, कृष्णा को ऑफर करके वो भी दिया जाता है, ठीक है जो भी हो, बट द क्वेश्चन इज लव विच इज मैटर, द अफेक्शन विच इज मैटर्स, दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। सो दोज हु वैल्यू अफेक्शन विल नेवर सी थिंग्स as they are. Sudama also knew this principle, so he just took that guttery with him, potli lilia. It does not matter, 4 kinds of rice. We offer, you know, of course, you know, we offer food, whatever is prepared, and offer it to Krishna, and then we go to taste, right? Ki namak kam hai, zyada hai, na? But we offer it to Krishna with that bhava holding by that I have prepared this for you without tasting. जो भी है इसमें आप संभाल लेना। आप जब ऐसा रिक्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली उनके गुरु करते करते राधा रानी तक जाता है। राधा रानी नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर कृष्णा, वो ऑटोमेटिक वहां संभाल लेगी जब कृष्णा को देना है तो, एंड वो रिटर्न में अपने को प्रसाद के रूप में आता है, तो राधा रानी विल टेक केयर। भाव इज मोर इंपॉर्टेंट, भावाग्रही जनार्दना, इसलिए उनका नाम है ना। भाव देखते हैं वे, कभी भी आपका स्टेटस नहीं देखते, भाव देखते हैं, आपने प्यार से क्या लेके आए, और वो भी कंडीशन भी वही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम भाव से, भक्ति से। प्रेम भाव इसीलिए भक्ति का ही रूप है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति का ही रूप है, तो उसके थ्रू ये हो सकता है। भावाग्रही जनार्दन, तो लेता है वो चावल और ब्राह्मण द्वारका के लिए निकल पड़ता है। ऑल एवरीथिंग इज सेट, सो एंड नाउ he starts thinking how will I be able to see Krishna's audience, ऐसा सोचते हुए अपना सफर तय करता है। Then we come to 6th chapter, that is 6th reason, that is journey to
Dwarka. So we did today contemplation, we did today preparation, and now we are undertaking the journey to Dwarika. है ना, journey to Dwarika. ये भी डाला है ना मैंने श्लोक? ओके, डाला है. त्रीणि गुल्मानि अतिथ्याय तिस्र कक्षाश्च सद्विज विप्रो गम्यान्धक वृष्णीनाम् ग्रहेष्वच्युत धर्मिणाम् त्रीणि गुल्मानि अतिथ्याय तिस्र कक्षश्च सद्विज विप्रो गम्यान्धक वृष्णीनाम् ग्रहेष्वच्युत धर्मिणाम्. The learned Brahmana, joined by some local Brahmanas, passed 3 guard stations and went through 3 gateways. And then he walked by the homes of Lord Krishna's faithful devotees, the Andakas and Vrishnis, which ordinarily no one could do. He then entered one of the opulent palaces belonging to Lord Hari's 16,000 queens, and then he did so he felt as if he were attaining the bliss of liberation. Dharmina, yes. So, 6th stage, we are in the 6th part of the Katha. So, Sudama starts his travel from Porbandar and reaches to Dwarika. Of course, how did he go? That is also all there, but that will not help us out. Okay, he went by walk. And जीवन में सबको अकेले चलना पड़ता है. ठीक है, राही मिल जाते हैं, नहीं राही मिल जाते, ये सब इसलिए मैंने एक्सपैंड नहीं किया. I am only taking principles in life. So I am expanding the story based on principles. So wherever there is principles, I am expanding that, and that is how this is taking 3 to 4 weeks. 4 weeks it will take. It will not be today. So Dwarika was nicely guarded city. It is part of Gujarat. Every day it's. So he was an anxiety. And what was his anxiety? That Dwarka is a nicely guarded city, a fortress, and will the guards allow me? Like here, when we enter this country for the first time, we saw on arrival whether the immigration officer would grant me visa. We always have that, a kind of anxiety within us, or whether I'll be rejected and deported back. होता है. मैं एक बार यहाँ पहुंच गया था, क्या बोलते हैं, नाइजीरिया. तो मेरे को पता भी उसी 2-3 दिन पहले ही चला था. वहां पे कोई येलो फीवर का वैक्सीनेशन लेके जाना होता है. मैं तो लिया नहीं. पहुंच गया ना, एयरलाइंस वाले ने कुछ पूछा. वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बोलता है कि येलो फीवर नहीं है, आपको तो वापस जाना पड़ेगा. वी कैन नॉट अलाउ यू इन आवर कंट्री. आई सेड दैट इज फॉर योर कंट्री. आई हैव कम फॉर 1 day visit for some conference. And if you want to send me back, I'll have to go back. But then think about it. You can call so and so person. He said, no, I will not. But of course, it was a Nigeria. When I called the other guy, that he said, you didn't take. I said, you didn't inform me. And even it has to be taken 10 days before. How will I? You just made my, you asked me to come in an emergency kind of 3 days. So that is just before going to Bahrain. I had been to there for a job interview only. So he says, no problem. You do one thing. People here, they will take some Lakshmi and they will leave you. मैंने बोला ये बड़ा अजीब. तो मैंने बोला whatever you want to take, you take him. Okay, give me $100, I'll give. तो वो वैसा सिचुएशन रहता है. कई बार गलत काम भी करके लोग आगे निकल जाते हैं. लेकिन आपने यदि कुछ नहीं लिया, आपने सारे पेपर सही रखे हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं रहता है ना, मिल जाता है. तो भागवतम में भी देखो क्या चीज बोला है, त्रीणी गुल्मानी.
त्रीणी गुलमानी मतलब 3 गार्ड स्टेशंस उसको मिले, क्योंकि वो सारे ब्राह्मणों के साथ में था और उसका नेचर तो साफ था, तो किसी गार्ड स्टेशन ने उसको कहीं रोका ही नहीं, कहीं रोका ही नहीं, सीधा वो निकल चला, तीनों गार्ड स्टेशंस को, तीनों गेट्स को क्रॉस करके चला गया। पास वो हम जब जाते हैं इमिग्रेशन के लिए तो हमको भी 3 जगह चेक करवाना पड़ता है ना, 3 जगह चेक करवाना पड़ता है कि नहीं करवाना पड़ता है? इमिग्रेशन चेक होता है। हाँ, सबसे पहले तो अपने को क्या होता है, हाँ बोर्डिंग, हाँ बोर्डिंग तो ठीक है, दैट्स ओके प्रोसेस, बट देन वी हैव इमिग्रेशन चेक, ओके, देन देयर इज अ पासपोर्ट चेक, क्योंकि आपका सारा बॉडी स्कैन होता है, उसके बाद में पासपोर्ट चेक, एंड देन देयर इज वन मोर फाइनल चेक बिफोर द फ्लाइट, राइट? सो 3 चेक हमको भी पास करना पड़ता है जब हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं। वी फील दिस इज हैसल, अरे पापा ये तो इवन वैदिक सभ्यता में भी था, 3 गार्ड को क्रॉस करके जाना होता है, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ हम लोगों ने अपना नया खोजा नहीं है, जो शास्त्रों में उसी के ऊपर थोड़ा एक्सपेंड किया है। सो ऑल दिस सिक्योरिटी 3 चेक्स आर देयर which we think as an hassles, they are part of necessary duties. If you are a smuggler, then certainly they will have a doubt and they will stop you, right? If you are a smuggler, or if you are trying to smuggle something, if you are trying to do something, they will try to stop you. But if you are nothing with you, when you are clear at your heart, at your baggage, they will allow you, right? They will not stop you. आप जूते उते निकाल के जाते हो, बेल्ट नहीं निकाल के जाते हो, बच जाता है तो फिर निकालना पड़ता है ना, तो आप फ्री हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुदामा भी वैसे ही था, बेचारा दिल का साफ था, कुछ प्रॉब्लम उसका ये नहीं था, तो वो नहीं पहुंच गया। सो एज ही वॉक थ्रू देन ही कुड सी अंधकाज और वृष्णिस, जो रिलेटिव्स मैंने बोला था ना, ननियाल, ददियाल, जितने उनके रिलेटिव्स थे, उन सब के एक एक भवन थे। उसके बाद में 16,108 रानियों के भवन थे, यहाँ 16,000 लिखा है, बट डोंट गो एज पर 16,000 ओनली, 16,108 पत्नियां थी उनकी, ठीक है। ओ, कभी कभी लिखने में ऐसा लिखते हैं कि 16,000, तो 16,100 लिखा, 8 नहीं लिखा, क्योंकि 8 मेन पटरानियां थी, तो 16,100 पत्नियों को उन्होंने सीधा वहां से लिया था, अपने नरकासुर के कैंप से। सो 16,108 क्वींस के महलों से क्रॉस गए, फाइनली वो लास्ट महल पे, वेयर द महल वाज टोटली शाइनिंग, ही केम टू दैट। हाँ, नरकासुर है जरासंध? नहीं, नरकासुर ने अनेक खूबसूरत युवतियों को अपने यहाँ बंधक बना के रखा था। जरासंध की इससे भी किया था ना? नहीं, जरासंध तो वो जो डबल, हाँ हाँ उसके इससे भी कुछ उसकी, हुआ था ना? नहीं नहीं, वो ये सारे चट्टे बट्टे एक ही थे, नरकासुर, जरासंध, वो सब ये, हाँ राजाओं को बंदी बना हाँ, राजाओं को, हाँ राजाओं का, हाँ मल्ल युद्ध में मारा गया। हाँ, ये थे युवतियों को, जहाँ फिर वो युवतियां बोली कि अब ये तो हमारे, हम असुर के यहाँ है, मीन्स इसने हमको बंधक बना के रखा था, हमको कौन शादी करेगा, हमारे पिताजी भी हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यू ऑल आर माई वाइफ्स, ऐसा करके उनको, उनका उद्धार करते हैं। इसलिए एक साथ 16,100 पत्नियां होती है, 8 पत्नियां अलग अलग समय पे आती है, उसकी भी कभी कथा लेंगे, 8 पत्नियां कैसे होती है, तो कभी और लेंगे। तो वो जब फैमिली में ये रहता सो एक महल जिसमें चमकीला होता है, वहां जाता है, ही थिंक्स दैट दिस इज कृष्णास पैलेस, बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं दैट वाज द पैलेस ऑफ रुक्मिणी, वेयर कृष्णा वाज प्रेजेंट विद रुक्मिणी एट दैट टाइम। कृष्णा इज प्रेजेंट विद ऑल 16,108 queens, but he was physically present there during Rukmini's palace. And Sudama was, when passing through the 3 gates and entering that palace from the street, when he was coming and entering this palace, Krishna was sitting with, actually, I forgot to tell. Sudama was already feeling that joy, when he is past these 3 stages and this Andakas, Vrishnis, and these queens, he was already in that stage. So he was already in the Brahmananda state. That is what, he was, मैंने वो इसीलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस किया था उस श्लोक पे, अच्युत धर्मिणाम, जैसे गम्य आनंद का वृष्णि नाम ग्रहेश्वर। सो ट्रांसलेशन में, एज इफ ही वर अटेनिंग द ब्लिस ऑफ लिबरेशन, ट्रांसलेशन, तो ही वॉज ऑलरेडी इन दैट ब्रह्मानंद स्टेज। हाँ, आनंद इन दैट ब्रह्म ज्योति, पीसफुल, जैसा होता है ना, जैसे वो तीनों गेट्स क्रॉस किया तो उसको ब्रह्म का आनंद हुआ, परम शांति मिली मेरे को, तीनों गेट्स में क्रॉस कर लिया। और जैसे ही वो फिर अंधक और वृष्णिस, बाकी, क्योंकि काफी लोग रहते हैं, कौन आए नया, कौन आया ये ऐसा, वो भी उसके कपड़े फटे पुराने देख के लोग, ये कौन जा रहा है सिटी में, डाउट रोकने वाले भी रहते हैं, अरे चोर उच्चे का तो नहीं है, ऐसा है ना, कपड़े देख के जज करने वाले काफी लोग रहते हैं, जजमेंटल नहीं रहना, हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था। उस समय वो जब वो क्रॉस कर रहा होता है, तब उसको ये क्या बोलते हैं, ये इसका भग मीन्स है ना,
मैं अभी चारों प्रकार के आनंद बताऊंगा, तो वो उस प्रकार का आनंद, लेकिन वैकुंठ का आनंद मिले वैसा लग रहा था। क्यों? सारे all opulent, nicely dressed people, having a look, all wearing helmets and wearing good गहने वगैरह पहन के, तो उनको उसको, पर फाइनली इस चमक वाले महल में उसको लगा कि ये कृष्ण का महल होगा, जो कि रुक्मिणी का महल होता है। और वहां पर से कृष्ण रुक्म इसके साथ बैठे होते हैं, और उसको देखते हैं, और देख के एकदम बाहर भाग के उसको मिलने जाते हैं। तो सुदामा और जाते हैं और सुदामा को गले से एकदम एम्ब्रेस कर लेते हैं, एंड फिर एकदम अफेक्शन होता है, और आंखों से अश्रुधारा, जो कि वार्म टीयर्स फ्लो हो जाते हैं, एक दूसरे के वार्म टीयर्स फ्लो होते हैं, अश्रुधारा। सो ये जर्नी यहाँ तक जो किया था उसने, वो खत्म हुआ। कि जैसे वो वहां से कृष्ण देखते हैं कि भाई ये तो विप्र आ रहा है, मेरा ये तो सुदामा लग रहा है, और कृष्ण भागते हुए आते हैं अंदर से और आके उसको गले लगा देते हैं। So, very powerful again lesson here also. As a conditioned soul, we should also have to take this journey all alone in our life. We also have to travel to Dwarka. Okay. We also have to travel to the supreme destinations. Okay. Okay. Our supreme destination here is the Golok Vrindavan, which I am putting in the chart always. I show you all there. So, we have to cross many gates, of course. Of course, 3 gates are important there also. We have to cross 3 gates, and of course many gates are there. Then we reach to the spiritual abode. Sudama crossed 3 gates, so we have to cross all these 3 lokas, right? We have to get out of this black, which has all the 3 lokas. पाताल लोक, भूलोक एंड स्वर्ग लोक, 6 स्वर्ग लोक सब मिला के। सो इसलिए 3 लोक बोलते हैं ना, ये सारा ब्रह्मांड को 3 लोक में डिवाइड किया जाता है। सो ये तीनों लोकों को क्रॉस करना होता है। सो वी हैव टू क्रॉस ऑल दिस गार्ड स्टेशन, वी हैव टू कम टू द ब्रह्म ज्योति, दैट इटसेल्फ यू कैन टेक इट एट वन स्टेज। सेकंड, यू हैव टू कम टू द स्टेज ऑफ ब्रह्म ज्योति, वेयर एवरीथिंग इज शांति शांति, ब्रह्मानंद का स्टेज मिलता है आपको, है ना, जैसे सुदामा को भी मिला था एकदम पीस पीस, ओ शांति शांति वाला। तो ब्रह्म ज्योति वाले सब शांति वाले रहते हैं ना, ओम शांति बोलने वाले रहते हैं, तो शांति मिलती है। तो यू हैव टू पास दैट शांति का स्टेज ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू पास द पैलेसेस ऑफ रिलेटिव्स, व्हिच इज वैकुंठास। ओके, दोस बीच का सेक्शन जो है उसमें वैकुंठ प्लैनेट्स है, ब्लू कलर का। एंड देन फाइनली यू रिच द सुप्रीम। वैकुंठास क्रॉस करने के बाद में आपको गोलोक वृंदावन आता है। तो वन फाइन डे we'll also be back to home, our home. Till that, what we have to do? Till that, we have to keep our faith, which belongs to us, alive, make it strong day by day, and all that our fate and our fears, that day will be undergone. यहाँ वाले लोग कयामत के दिन बोलते हैं ना, कयामत के दिन डिसीशन होगा। तो हमारे लिए वो कयामत का दिन नहीं भले, बट वन फाइन डे वी विल बी बैक टू आवर Godhead. That is where our place is, and all our this fears, all our anxieties, all everything, whatever we had, that will all get disappeared. And that's what Sudama is also come to that stage. All his problems are now going to get disappeared. He was desired a crown to be success. He is crowned to be having a success now. So as a soul, we will also have success, but we have to pass through this all planetary systems. Passing through Swarga itself is difficult, you know. So, passing through Swarga itself, your temptation fall, and then you are stopped there itself. So you have to pass through this first gate itself, very important. So you getting out of this Brahmanda, and then going to, Swarga Loka will have many Siddha Lokas, Gandharva Lokas, Vidyadhar Lokas, so many Lokas, and all this temptation, opulence, everything, gratification, that all those you have to cross those. Material energy will try its level best to give you more and more temptation, but you will have to cross all that. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. Maya adhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetu nanena kaunteya. क्या कि ये प्रकृति मेरी है और इसको बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। इफ यू जस्ट सरेंडर इट टू मी, देन यू विल बी इजीली कवर। सो ये ग्रेटिफिकेशन आपके सामने आएंगे, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मानंद, शांति मिल गई, अब कुछ चाहिए नहीं ऐसा सोचोगे, लेकिन फिर एक्टिविटी करने का दिल करेगा, एक्टिविटी नहीं रहेगी।
So, so you have to cross that temptation also, and then cross the Vaikunta and then go to Goloka. It's a big thing for you. सो उत्तर कुमार, ये सारा जर्नी कैसा होता है, बृहद भागवतम के इसमें आता है, बृहद भागवतम के अंदर डिटेल में आता है, जहां पे उत्तर कुमार ये जर्नी डिस्क्राइब करता है। पर्सन गोलोक तक जाता है तो कैसे कैसे टेम्पटेशंस उसको रास्ते में आते हैं। ऑफकोर्स इट इज लघु भागवतामृत है, बट ये टेम्पटेशंस दिखाते हैं, सारे टेम्पटेशंस आपको डिटेल में बताई जाती है कि वो जो उत्तर कुमार नाम का जो व्यक्ति है, गोप कुमार, नॉट उत्तर कुमार, गोप कुमार नाम का जो व्यक्ति है, वो इन सारे टेम्पटेशंस को क्रॉस करके कैसे कृष्ण को मिलने जाता है। तो कभी वो भी एक अलग स्टोरी है कभी। सो एक बार श्रीला प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने पूछा था कि व्हेन आई कम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रभुपाद, हाउ विल आई रिकॉग्नाइज यू। ना ये भी तो है ना, हमको पहचानेंगे कौन। जैसे ब्रह्म ज्योति, वही बोलते हैं ना, जैसे ब्रह्म ज्योति में एग्जाम्पल ये इस जद्दा का देता था कि आप जद्दा आ गए हो लेकिन अभी तक किसी को जानते नहीं है कि भाई जद्दा में भगवान कहाँ रहते हैं, पता नहीं है, तो आप घूम 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 के निकल जाओगे। तो ब्रह्म ज्योति में वैसे ही आप घूम घूम के निकल जाओगे, वापस वापस गिर जाओगे, कहने का मतलब। तो या फिर वहीं रह जाओगे, सड़क पे रहना, इट्स नॉट दैट इजी। सो वन फाइन डे यू हैव टू फाइंड सम शेल्टर और गो बैक टू योर एंजॉयमेंट। So, Srila Prabhupada said, you don't have to worry. I am your spiritual master. I have to worry. If you have come, I will have to come and catch you and take you to the grooves of Vrindavan and introduce you to Krishna. That's it. My work, job will end there. You don't have to worry, he says. It is the duty of the spiritual master. He has to worry. So, this way, everybody has to take this journey back home, back to life. एक छोटा सा और एक लेकिन लेते हैं, लेकिन हाउ मच इट विल टेक अस, एक और ले लें, 7th वाला, बट इट इज ऑल्सो बिग। क्या बोले, 1 बज गई है। रिसेप्शन बाय कृष्णा, नो, और वी ब्रेक एंड वी हियर इट नेक्स्ट वीक। नितिन तो मुझे ऐसा है अरे बोल, सुनना चाहते हो तो 10-15 मिनट और लग जाएगा। अरे बोल, तो रिसेप्शन बाय कृष्णा, I thought we'll do this, and because next 2 is also bigger. So I'll just do reception by Krishna. So Krishna receives Sudama. हमने सोचा ही था. He brings them inside, and then there are so many verses describing how Sudama. I think so. I've given those verses. Will not read that. So that is, you can read to yourself and sometime, because it will take this, like मैं उसका meaning पढ़वा देता हूँ आपको. Lord Krishna seated his friend Sudama upon the bed. Then the Lord, who purifies the whole world, personally offered him various tokens and respects and washed his feet. O king, after which he sprinkled the water on his own head. He ointed him with divine fragrant sandalwood, agaru, and kumkuma paste, and happily worshipped him with aromatic incense and arrays of lamps. After finally offering him betel nut and the gift of a cow, he welcomed him with the pleasing words. This is this stage where Krishna, after receiving Sudama, is doing his reception. So now I say, now imagine Krishna is, he said, Sudama said, like, he's my worshipable Lord and I'm going to have his darshan. And what is happening here? Who is worshipping whom? God is worshipping Sudama. So you are worshipping the deity daily. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, ये डेली हम आरती कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा हुआ कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उतर के बाहर आए और आपकी आरती उतार रहे हैं? ये सिचुएशन वैसा हो रहा है उनके साथ में। So मीन्स लाइक we cannot think of that situation, right? हम जिस भगवान की आरती कर रहे हैं वो भगवान निकल के हमारी आरती कर रहे हैं, ऐसा हम सोच नहीं सकते। पर यहाँ पे भगवान वो कार्य करके दिखा रहे हैं। क्योंकि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जना, कृष्ण बोलते हैं यदि मैं बराबर की गो ब्राह्मण हिताय च, जब वो बोलते हैं कि ब्राह्मणों का आदर सत्कार होना चाहिए, तो मैं यदि नहीं करके दिखाऊंगा तो फिर क्या होगा? ब्राह्मणों का आदर सत्कार यदि मैं नहीं करके दिखाऊंगा तो मैं गलत परंपरा बिठाऊंगा। मेरे दर पे भी यदि ब्राह्मण आया है, मेरा भक्त आया है, तो मैं उसका इस प्रकार स्वागत करना चाहिए, इनडायरेक्टली गिविंग अस द लेसन दैट हाउ वी हैव टू ट्रीट अ वैष्णवा, हाउ वी हैव टू ट्रीट ए
ब्राह्मणा व्हेन ही कम्स होम। आप देखते ही होंगे अभी अक्टूबर में फिर 30 तारीख को आ रहे हैं महाराज। 30 अक्टूबर अपना अपना डेट रिजर्व कर लेना। भक्त विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज आ रहे, विल डू हिज रिसेप्शन एज इट इज सेड हियर। ओके, ऑफ कोर्स हम लोग इतना चंदन लगाना पैर धोना वो सब नहीं करते हैं, बट देन वी डू ऑल आरती करना ये करना सब करते हैं। सो कृष्णा was speaking, means doing all these acts and speaking pleasing words. And what was Rukmini doing? Rukmini was also giving chamara, fanning Sudama, वो श्लोक में आता है। And Sudama, who was what? In a ragged clothes. Clothes that were thin as veins, means were visible, as thin that the veins of his body were visible from the clothes. And उस क्लोथ्स में धागा कहाँ है कपड़ा कहाँ है ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया था, इतने जगह से फटी हुई धोती सिल सिल के पहनी हुई थी। तो रैग्ड क्लोथ ऐसे ही होते हैं ना, बाहर से सिलाई दिखते रहती है। तो उस प्रकार के कपड़े पहने हुए सुदामा को रुक्मिणी फैन कर रही है। कृष्ण ने बोला भाई ये, अब कृष्ण इतना सत्कार कर रहे हैं तो रुक्मिणी भी सत्कार शुरू कर दी। सो इट इज एब्जेक्ट पॉवर्टी काइंड ऑफ कंडीशन देयर इट इज डिस्प्लेड, है ना, कि उसके नसें दिख रही है, कपड़े के धागे दिख रहे हैं, कपड़ा नंच मात्र भी नहीं दिख रहा है, धागे ही धागे दिख रहे हैं। ऐसे के अंदर उनको आजू बाजू वाले रॉयल पैलेस में, क्योंकि अंदर रॉयल पैलेस, उनको अपने गद्दी पे बिठाया उन्होंने, लेकिन जहां रुक्मिणी को और वो बैठते हैं शयन करते हैं, उस पलंग पे बिठाया, विच इज अ प्राइवेट प्लेस। आजू बाजू रॉयल पैलेस, दे वर एस्टोनिश्ड टू सी कृष्णा। He is so spotlessly, lovingly honoring this Brahmana who is so shabbily dressed, they were thinking. And the residents in the palace, they were thinking, what is this person what kind of piousness he has done, that Dwarkadish, he is serving him so nicely. Leave about Dwarkadish, goddess of fortune, लक्ष्मी हर किसी के पास जाती नहीं है। अब यही बोलते हैं ना, गरीबों के पास तो लक्ष्मी नहीं रहती है ना, लक्ष्मी नहीं है तभी गरीब है, ऐसा बोलते हैं ना। तो लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है जैसे कोई उनका भाई है, आ गया हो ऐसे। तो ये क्या चीज चल रहा है? तो ये समझने वाली बात है कि एज अ सोल वी ऑल्सो रीच गोलोक वृंदावन, एंड एज पर बृहद भागवतम सेम थिंग, कृष्णा इज गोइंग टू कम आउट एंड रिसीव यू इन द सिमिलर फैशन। इनफैक्ट ये तक लिखा हुआ है, करताल और मृदंग के कीर्तन के साथ में रिसीव करता है कि भाई मेरा क्या सुबह का भूला कोई शाम में घर पे लौट के आए तो भूला नहीं कहते हैं ना, वैसा उसका स्वागत होता है। वे मेरा भूला भटका अंश इतने सालों तक भौतिक जगत में फंसा रहकर नाना यातनाएं झेलकर रिटर्न आया है। तो कृष्ण उनको एज इट इज अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ नचाते हैं, अपने साथ घुमाते हैं, और ना और सब कुछ करते हैं। सो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि आवर हरे कृष्णा मूवमेंट इज नॉट ओनली गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, बट टू हैव ए पिकनिक विद हिम, बट टू हैव ए पिकनिक विद कृष्णा। आपको कई बार मंदिर में दिखेगा कृष्णा इज हैविंग फूड विद हिज फ्रेंड्स। एक कई मंदिरों में आपको दिखेगा ये, क्योंकि ना वो टिफिन की लीला। तो शिला प्रभु ने बोला था कि इट इज नॉट ओनली दैट, सो दैट इज हैविंग सेवा और कृष्णा वहां पे जाके खाली उनको ये करना है, बट सो we can't dwell on the things that I will go to Krishna and have his tiffin box, उसके tiffin box में से मैं ये खाऊंगा, do the we can't dwell upon that, but all we can do is serve the mission of Krishna, serve the mission of Srila Prabhupada, bring people to Krishna consciousness, give them, guide them on Krishna consciousness. That is the most noble cause, that is the most noble goal, that and rest all things will automatically fall. So that's a great gift, there's a famous dialogue, fools rush where angels dare to dwell. सुना है कभी ये डायलॉग बच्चों में? आजकल नहीं बोलते हैं, आजकल इंग्लिश मीडियम भी इतनी नहीं रह गई है ना। फूल्स रश वेयर एंजल डेयर्स टू ड्वेल। बोल तो पागल लोग रश करते हैं जहां पर एंजल बोलते हैं अपने देवी देवता, आप समझ लो ना, क्योंकि देवी देवता भी जाने के लिए कतराते हैं उस जगह।
तो देवी देवता तो हमने देखा ऑलरेडी, कृष्णा का एसोसिएशन पाने के लिए महादेव का, इनफैक्ट महाविष्णु का हमने ऑलरेडी कथा सुनी. बट फूल्स लाइक अस थिंक दैट वी विल गो एंड सिट विद कृष्णा, ईट विद कृष्णा. वो लोग को इतना बहाना बनाना दर्शन करने के लिए. और शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोल दिया कि वी विल हैव अ पिकनिक विद हिम. पीपल फूल्स लाइक अस विल थिंक ओ विल गो एंड हैव कृष्णा के साथ में पिकनिक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. तो शिला प्रभुपाद वांटेड टू से इज यू हैव टू डू सर्विस, नॉट टू डू विद हमको सेवा करना है. ऑल यू दैट यू विल बिकम इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा. सो you if you strictly follow your aspirations, then Krishna will give you what it has to give. कृष्णा बोलेगा भाई तू मेरा पंखा हिलाने वाला था, पंखा हिला. अरे बाबा तू मेरे लिए खाना बनाने वाला था, जाके खाना बना, राधा रानी को हेल्प कर. दैट इज द स्टेज व्हेन कृष्णा विल टेल यू ना. ये ना जो नवदा भक्ति के अंदर, ये जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति के अंदर भाव और प्रेमा सर, तो भाव कंडीशन पे कृष्ण आपको बताएंगे, तब जाके प्रेम कृष्ण पे एक्चुअल हमारा आ पाएगा. अभी तो हमारी अनर्थ निवृत्तियां चल रही है, हमारे अनर्थों को हम साफ कर रहे हैं ना. अदो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, ये 3 चलते हैं. हाँ, श्रद्धा है तब यहाँ आ रहे हैं, फिर साधु संग कर रहे हैं, फिर भजन क्रिया कर रहे हैं. अनर्थ निवृत्ति हमारे ये तीनों करते करते हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो रही है. फिर हम स्टडी हो रहे हैं, फिर फोकस्ड हो रहे हैं, एंड देन ये आगे श्रद्धा और प्रेम. हाँ, सो वो होएगी. लेकिन हम जो सो डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. इसके लिए हम बोलते हैं कि यू विल फाइंड इन वृंदावन, मैं कृष्ण को खिला रही हूँ. सहजिया बोल के बोलते हैं हम लोग उनको. दे सर्व, ट्राई टू सर्व कृष्णा एज इफ दे देमसेल्व्स आर कृष्णा's gopis right now also. There are bhavas, people serving, but our bhava is always Krishna. Prabhupada said, don't be under that impression. We are all sevaks. Krishna will tell us if we are in that bhava. भक्ति रसामृत सिंधु आपको बहुत क्लियर बोलता है कि आपको इतना कॉन्टेम्पलेशन करने की जरूरत नहीं है कि हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, मैं ये गोपी हूं उसके साथ ऐसे नाचूंगी, मैं ऐसे करूंगी ना. आपने अपनी सेवा ही करना है. सेवा करके आप उस भाव तक प्योर होके पहुंचो, और उसके बाद में वे खुद बताएंगे आपको आप क्या थे, और आप उसकी सेवा में लगना. जब तक एक ही कार्य हमारा. सो 3 पावरफुल लेसन अगेन हियर ऑल्सो, कि व्हाट डिड इज how Lord Krishna worships his devotees. That's a lesson. Like Krishna also worships his devotees. So श्रीमद् भागवतम क्या बोलते हैं? त्रैलोक्य गुरु, गुरु ऑफ 3 वर्ल्ड्स. ऑल द 3 वर्ल्ड्स के जो गुरु है, अर्थात जो कृष्ण है, इज नॉट ओनली टीचिंग अस बाय एग्जाम्पल. He is not only doing the seva, but teaching us also by the example. So the worshipable Lord of Sudama is being worshipped by the Lord himself, So which is when, if Krishna is giving that example, even if we serve the devotees of Krishna or serve the sannyasis of Krishna, Krishna will be so much satisfied with us. So Krishna himself says, worship my devotee. Worship of my devotee is much greater than my worship. क्योंकि इसलिए जब गुरु आते हैं तो ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड दैट इज हाउ वी ऑल्सो वर्शिप हिम लाइक कृष्णा, बट नॉट थिंकिंग हिम एज कृष्णा. So the respect is given the same thing. So Krishna is demonstrating that respect by worshipping a Brahmana who is Brahmavittama, not an ordinary Brahmana by karma. Okay, he is a Brahmavittama. And Krishna, second lesson, Krishna wanted to show everyone that everyone runs after Lakshmi, whereas Lakshmi will fan you if you serve the Lord or Lord's devotees. ही लक्ष्मी के पीछे भागते हैं हम, राइट? और लक्ष्मी यहाँ क्या कर रही है? एक पॉपर सुदामा की सेवा कर रही है, चामर डुलाकर. लक्ष्मी तो सबके यहाँ धन देती है, सफाई तो वो कभी जिंदगी में करती नहीं है, परंतु यहाँ पे सेवा कर रही है. So if we want Lakshmi in our life, then we also have to become Krishna Sasya Sakha. पहला वर्ड जो इस स्टोरी को शुरुआत किया था, कृष्णा सस्य सखा, अर्थात कृष्ण का फ्रेंड बनना होगा. फ्रेंड थ्रू फॉर्म ऑफ सेवा.
So Lakshmi would automatically serve you in that case. But if you only try to serve Lakshmi, then it is Ravan mentality. Ravan wanted to enjoy only Sita and didn't wanted Ram. He was doomed. तो ऑलवेज लक्ष्मी नारायण, इसीलिए आप देखोगे राधा दामोदर, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, कभी भी कृष्ण का नाम अकेला नहीं लिया जाता. उनके भक्त या शक्ति के साथ में लिया जाता है. भक्त जैसे प्रहलाद नरसिम्हम बोलते हैं या लक्ष्मी नरसिम्हा बोलते हैं, इसी कारण ऐसा नाम लिया जाता है. और थर्ड है लेसन है, third lesson is all the residents of the palace were also bewildered. And so they saw the torn clothes and the bones of Sudama and all those. So they thought that, this beggar is getting so much of treatment. Was he a beggar? 2.7 we read, right? Karpanya dosho pata subhava pruchhami tvam dharma sammuda cheta. आपने पढ़ा था. कार्पण्य का मतलब क्या था? कृपण, राइट? कृपण, कंजूस. उसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की थी हमने. याद नहीं होगा आप सब. वर पार्ट मागे सपाट. वर पार्ट मागे सपाट, यही बोलते हैं ना. कि आगे जाते रहते, आगे का याद रहता है, पीछे का भूलते रहते. So actually he was a beggar. No, he was the wealthiest person because he's having Krishna prema. जो जिसके पास रहता है वो देता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा नहीं हो तो मैं बेगर हूं, ऐसी बात नहीं है. अरे मेरे पास किसी को हेल्प करने की क्षमता है, मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, दैट इज बेगरपन, दैट इज कंजूस. मेरे पास खाना पड़ा है, मैं गरीब को खाना नहीं दे पा रहा हूं, दैट इज कंजूस. मैं क्या बोलते हैं, एक सामने व्यक्ति चलने के लिए कोशिश कर रहा है उस, और मेरे पास दोनों पैर है, मैं खड़ा हूं, उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, वो कंजूस. और अपने अकड़ में निकल जा रहा हूं. सो नो, दैट इज कार्पण्य. जो अपने पास है और वो उसको हम मदद में नहीं लगाना चाहते. आपका हार्ट तो है, उसको किसी के सेवा में लगाना, अर्थात कृष्ण की सेवा में लगाना. तो ये तो हाई, वो सब कृष्ण के प्रेम की सेवा में लगा हुआ था. ही वॉज ए रिचेस्ट पर्सन. Or so they were all becoming judgmental. So again, not to become judgmental. Same was that what I took example of mango or arol, right? 4 mangoes ka. So coming to conclusions may be wrong. He was a devotee of Lord Krishna, and Krishna just sees bhava. He never sees who you are wearing designer clothes or this clothes or that clothes. No, you are wearing Armani watch or Armani clothes or no. Example एक देके मैं end करता हूँ अपना. How many of you, like, for example, I'll tell you example, I'll tell later on. Oh, how would one person, like, Stanford was his name. And he was harping to go to Howard University. At, he wanted to take degree in Howard University, but he met an accident and he died. It was not that he was not able to. He was able to afford, but he met with an accident and he died. But since this thing was that, I wanted to be in Harvard, uski ichha thi, one parents, their parents, ordinary, normal shirt, pant, pehne, normal dress pehne हुए US में, they, parents came to the Harvard University, okay, so sorry, here, and they requested, our son was very ardent fan of your university. We want to construct but he died. We want to construct something here. So the principal says, we don't want to create any, यहाँ पे कोई कबर अबर बनानी नहीं है हमको. क्या बोलते हैं उसको, क्रिमेटोरियम, क्या है उसको क्या बोलते हैं, याद आपको? Symmetry. Symmetry. We don't want to create any symmetries here. So they're not symmetry. We want to construct a big building and give it to you, like, So he says, can you afford that? The building which you are sitting itself is about 10 million US dollars. I don't think so you will be able to afford even a single building of this university. तो साथ में उनकी जो लेडी रहती है, वाइफ रहती है, वो बोलती है, it just costs $10 million for a university. Then why not we create our own university? And that is how those husband wife, who were simple, like they didn't boast of their richness. They were actually the owners of the
Stanford multimillionaire group in USA, and they could have been happily donated one building, and just they wanted his son's name to be there on that building. When the principal became judgmental, he just said, okay, that wife said, why can't we create our own university? And that is how they left, and they created the Stanford University, which became equally good as Harvard, right? Today it has equal name or sometimes more name than Harvard. Stanford University. That gave the birth to Stanford University. So being judgmental, see, love, like, who is a loser and who is a... So they were thinking these persons are very poor people, whereas they were very rich people. They were the business tycoons of US. But being judgmental proved them wrong. So this way we complete the reception of Lord Krishna, right? And then there are two more things: recollection of their past days, and then reciprocation of Lord Krishna. That we will end up with next week. किसी का कोई डाउट है? हो सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल लेते हैं तो people may get doubt in. You can connect it with Bhagavad Gita, and also you can connect it with your logical knowledge. If you have any doubts, we can take them. प्रभु जो रॉ राइस लाए थे या फ्राइड राइस लाए थे? चिप्ड राइस लाए थे, पोहा। पोहा बोलते हैं ना, फ्लेक्ड राइस, चिप्ड राइस, बीटन राइस, सॉरी, हाँ, बीटन राइस। बिकॉज हमारा उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, चिप्ड राइस भी बोलते हैं, बीटन राइस भी बोलते हैं, पोहा बोलते हैं, चुड़वा बोलते हैं। हाँ, तांडुल कभी कभी वो तांडुलम लिखा हुआ है तो कभी लोग बोलते हैं कि चावल के दाने लाए। हम लोग तो टूरिस्ट में थे, हाँ, वो था कि जो राइस जो खिचड़ी बनाते हैं उसको खुद चावल बोलते हैं, खुद हमारा मतलब तो फ्राइड फूड जो है वही लाए थे। तो ये जो राइस है, इसको फ्लैट जैसे ना, वो उसको कूट देते हैं ना, जो राइस को जब, हाँ, छोटा छोटा राइस, हाँ, जो राइस का जो ऐसा जो सिंगल राइस को राइस नहीं रहता, उसको जब बीट करते हैं, हाँ, that is the तो वो पोहा ही बोलते हैं उसको। पोहा ही। डिफरेंट। ओके, आजकल मेडिसिन में होता है, अलग बात है, बट पहले के जमाने में वैसे ही होता था, कूटा हुआ राइस, flat rice, chipped rice, all one and the same fruit. It's one and the same. Logic is that. English name is same, and there are so many different. हिंदी में वेराइटीज हो जाएगी आपको नाम। Actually, if eastern region, if you heard that muri, That is swollen rice. That is swollen rice. that is the rice you have to have a fried rice. Yeah, that, After that it will be muri. हाँ. So that middle part is the kuda rice. That is you have उसको swollen किया जाता है, उसको क्या अग्नि में, वो क्या मिट्टी में डालते हैं प्रभु, ये सब तो Exactly. मिट्टी में डालते हैं और वो 1 सेकंड में फूल जाता है, तो फूला हुआ राइस है ना। पोहे वैसे ही बनते हैं, नहीं, पफ राइस बनते हैं उससे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रभु, उसको फिर प्रेस किया जाता है, उससे पोहे बनते हैं, और वो बीटन राइस वही है, उसको बीटन प्रोसेस से निकालते हैं। हाँ, पफिंग से पहले बीटन राइस होता है, हाँ, ठीक है। हम वो बचपन में जरूर वो भड़भुंजे को देखे हैं हमने, जो अब वो आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हम तो भड़भुंजा ही बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, जो सेक के देता है, कौन सा पोहा नहीं मिलता है? नहीं, जो राइस को ऐसा सेक के देते हैं ना, लेक राइस खाते हैं ना, वही है। अच्छा, हरि बोल, हरे कृष्णा। एक और क्वेश्चन प्रभु। हाँ प्रभु, आपने कहा था कि नाम वैसे लक्ष्मी का अकेले नहीं लेना चाहिए, जैसे लक्ष्मी नारायण शक्ति के साथ, लेकिन एक प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सिर्फ राधा राधा नाम उनका अलग। मैं लाइक वो क्या बोलते हैं, केवल राधा नहीं, वो केवल राधा का नाम जपते हैं, बट लेकिन एक ही होता है ना, एक संप्रदाय है, तो केवल राधा नाम के जपने वाले भी संप्रदाय है, केवल दुर्गा नाम जपने वाले की भी संप्रदाय है। परंतु कहने का तात्पर्य है कि राधा कौन है, कृष्ण की एनर्जी है। सो एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट, समझने वाले लोग भी है, आपको आएंगे जैसे, और एनर्जेटिक को इंपॉर्टेंट समझने वाले भी है, बट समझना यही है कि एनर्जी और एनर्जेटिक एक दूसरे के बिना अभिन्न है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी
सिर्फ राधा को जपना एक मतलब कह रहा हूं, राधा को लक्ष्मी को पाना, जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी को पाना इज नॉट दैट इजी। यू विल बी डूम्ड एक्चुअली। केवल लक्ष्मी को, कहीं पर भी आप देखोगे शास्त्रों में, असुर मेनली यही चाहते हैं कि उनकी शक्ति को चाहते हैं, वो असुर मेंटेलिटी आती है। प्रेमानंद विल नॉट टॉक अबाउट नेम, बट गौड़ीय संप्रदाय में तो हरिवंश जो है हाँ। वो तो राजा की जाति श्रीला प्रभुपाद की जय।